میں ایک ایک لفظ کے بدلے 100 یورو آپ کو تول کے دوں گا، اور کوئی میرے لائق خدمت، اس سے بڑھ کر میں کیسے آپ کو جھوٹا ثابت کروں؟ جی اب سارا گروپ یہ بھی سنے گا عامر ندیر وہابی صاحب، آپ پہلے کی طرح اپنی بات سے نہ صرف بھاگیں گے بلکہ انکار کرنے والوں کی طرح اس کے اوپر مزید ڈٹ جائیں گے، یہ سارا گروپ دیکھے گا۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ الفاظ سنیے جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس عقیدے کے متعلق کہے ہیں کہ یہ عقیدہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان کے اوپر جانے کا ہے، یہ پورا کہاں پورا سے سنانا، پورا سنانا، قرآن میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے اس شروع عقیدے سے کا؟ سنانا، تو پھر یہ شروع دیکھتے سے ہیں کیا سنانا، کہتے ہیں، چلے ہاں سنیے۔ پورا سنانا، وہ ایسا نہیں۔ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ انجیل میں ہے، لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی۔ برنباس، ایک دفعہ پھر سنیے۔ حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ انجیل میں ہے، لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی۔ نہیں جی، اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عامر نذیر صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا ہوا وہابیوں کے خدا کا، یہ تو ہو گئے جھوٹے اس لحاظ سے، کیونکہ ان کا جو دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن سے ثابت ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ ہے، یہ تو بائبل میں لکھا۔ جی عامر نذیر صاحب، اب کیا کہوں آپ کو، خدا کو نعوذ باللہ، نہیں خدا ہی کہتے ہو وہابیوں کے، جی خدا وہابیوں کے پیسے کب دو گے؟ اب آپ چپ جی سارے دوست ٹیپ ٹیپ کریں جی سارے دوست۔ دیکھیں، مرزائیوں کی براڈ پر کبھی بھی کسی مسلمان کو اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا جتنا ٹائم آپ کو یہاں بات مجھے کرنے سوال کے لیے کا دیا جواب جاتا ہے۔ دیں، میں نے اب بات پوچھا، آپ کی سنی نا سب میں نے، یہ اور بھائی آپ کی لڈو بات سن پنجو نہ لی نا سنائیں، سب وہ نے۔ لڈو پنجو نہ اچھا سنائیں۔ یعنی پہلے بھی آپ نے بولنا ہے، بعد میں بھی آپ نے بولنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ 100 وہ یورو بھائی بتاتے ہیں نا اپنی باری میں بولنا نا۔ سولن صاحب آپ نے سوال کیا ہے، جواب آپ کی سننے بات کی ہمت آپ 200 نے یورو کیوں کب نہیں دے؟ ہے؟ جتنی لمبی بات آپ نے کی ہے، کیا کسی مرزائی براڈ پر اتنی لمبی بات کسی مسلمان کو کرنے دیتے ہو؟ انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے اب چپ تو کرو نا، اب چپ تو کرو نا، دعوے کی دلیل لو نا، دعویٰ کیا میوٹ لگا کے بات تو دعوے سنو کی نا، دلیل دیتے ہیں، چپ تو کرو نا۔ میں نے غلط بیانی کی عابد ہے، صاحب کے ساتھ بھی اب یہی سمجھ وہ نہیں آ رہی زبان کہ تو میں نے منہ کیا میں بات رکھو نا، کر دی ہے۔ چیخ چڑھائی پا دیتا ہے، چڑھا نہیں پا دیتا، جیب تے منہ چھپاؤ نا جی انور روان صاحب، جیب تے منہ رکھو نا، حوصلہ کرو۔ میں نے آپ کی بات خاموشی سے میوٹ لگا کے سنی ہے۔ جو کر لے تو گل تو کدی بندش بیک نے کیوں ایسا صاحب کدی بندش بیک نے کئی گل بات میں نے کی پی ایف ڈبلیو پہ بیٹھ کے اترنا اور فتوا کدی ادھر سب بندش کدی نہیں بیٹھے یار، وہ بندش کدی بیٹھے ہو توڑ دو کہ توڑ دو، ہر روز مرزائیاں چی بندے ہو۔ اچھا یہ بات کرنے کے بعد اب اگلا بندہ جواب دینے لگا ہے تو چیخ چاڑا پا دیتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اوے جواب میں نے سوال نہیں اٹھایا، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بات کی ہے نا، یہ جو شرط لگائی تھی کہ 100 یورو ناپ کے دوں گا، یہ واپس کرو، کب دینے ہیں؟ ہاں اب میوٹ لگا، میں دیتا ہوں نا، ابھی دینے تو لگا ہوں۔ دیکھو جی سنو، اب اس کی بھاگنی، اب میوٹ تو لگاؤ نا، چپ تو کرو۔ او یار چپ کرو، کیڑا کہاں کھا کیا آئے ہوئے ہیں؟ ہوتا الٹا کیسے دوڑتا ہے؟ چپتے کر جا، چپتے کر جو انور روان صاحب۔ بھائی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے، جی قاری صاحب یہ دیکھ لے آپ کی براڈ پہ یہ ہمارے محترم عامر نذیر صاحب کو یہ کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، اگر یہی الفاظ ہم نے ان کے منہ کے ان کے کان کی طرف لوٹا دیے تو انہوں نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ عابد صاحب انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے وہ وہابی ہیں، خدا کے تو اپنا جواب دے رہے ہیں، آپ میوٹ لگائے نا F16 صاحب، ابھی آپ نے میوٹ نہیں لگانا، میں نے آپ کو اتار دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب آپ نے نہیں سنا تو عابد صاحب اپنے الفاظ تو آپ جواب سننے کی ہمت رکھیں یار، آپ کے جواب سننے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے غلط بیان آپ کو میں نے کتنا ٹائم دیا ہے؟ نہیں ہے، وہ وہابیوں کے میری خدا بات ہے۔ سنیں، میری عابد بات صاحب سنیں، پہلے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ ان کو کہیں گے میں لوگوں میں جرات جواب سننے کی بھی نہیں ہے یار، جواب کیا دینا انہوں نے اس پہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ مرزا غلام میں نے تو سوال ہی نہیں کیا، میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آپ کا عقیدہ جو سا حضرت عیسیٰ اگر میں کہہ دوں کہ مرزا غلام قادیانی بالمک کو کا خدا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مرزا قادیانی بالمک کا خدا تھا، اس نے لکھا ہوا ہے بھائی۔ مرزا غلام قادیانی بالمکوں کا خدا تھا، اور بالمک کہتے ہیں چوڑوں کو، چوڑوں کا خدا تھا مرزا غلام قادیانی، پھر کیا کریں گے آپ؟
कारी साहब इसको म्यूट लगाएं और जवाब तो सुन ले, जवाब सुन ले। सबको म्यूट लगा दें कारी साहब, और अनवार अवान साहब से कहें कि अगर इन्होंने बात मुकम्मल नहीं की तो इनको मजीद टाइम दे लें, ये अपनी बात मुकम्मल कर लें। लेकिन जब ये अपनी बात मुकम्मल कर लें, मैं यही कह रहा हूँ कि F16 साहब, अगर आपने बात अगर आपने और करनी है तो ये मुसलमानों की बरौड है, दिल है हमारा। आप 10 मिनट भी कहेंगे, मैं सबको बिठाऊंगा, आपको टाइम दूंगा, आप सवाल करें। आप में हिम्मत ही नहीं है जवाब सुनने की। ओ भाई 10 मिनट दूंगा मैं आपको। कारी साहब मेरी बात सुने, मैंने सवाल करें, आप उसका जवाब ले, अगले को बात ही करने दें। साहब बात सुने, मैंने बात ये रखी है कि इन्होंने अमर नजीर साहब ने अभी आपने जितना बोलना है बोल लेना है, फिर दोबारा नहीं बोलना है, म्यूट लगा के फिर अगले का जवाब। अमर नजीर जिन्होंने 5 महीने पहले दावा किया था कि वो वहाबियों के खुदा हैं, इन्होंने कहा था कि ये जो दावा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, ये साबित करें। डॉक्टर इसरार के अल्फाजों से उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान में जाने का, ये कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, ये सिर्फ बाइबल में से है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, इन्होंने फिर दावा किया था, जो आज से 5 महीने पहले इन्होंने दावा किया कि मैं खुदा हूँ वहाबियों का, इन्होंने कहा था कि मैं पैसे नाप के दूंगा, तोल के दूंगा। अब ये अभी वो देने लगे हैं, बात मुकम्मल हो गई, जेब से निकाले, अभी वो देने बात लगे सुने, हैं। बात मुकम्मल हो गई आपकी। अभी म्यूट लगा के बात सुनना है, अभी म्यूट नहीं हटाना आपने जब तक नजीर साहब बोल रहे हैं। जी नजीर साहब। मलक इमरान भाई और आबिद भाई, आप सिर्फ इनको कारी साहब को कंट्रोल करने दें, और कारी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे फिर पूछ लें। 2 दफ़ा उन्होंने अपनी बात दोहराई, अगर तीसरी दफ़ा भी वो दोहराना चाहें तो मैं सब्र से सुनूंगा उनकी बात। उनको कहें कि जब मैं बात करूं तो फिर बीच में शोर नहीं करना है। इन्होंने जो बात 2 दफ़ा करनी है और बात करनी है। कारी साहब मेरा ख्याल है कि इनसे मैंने कोई बात नहीं सुनी, इनकी मैंने ऑडियो सुनाई है, उसमें जो आपने बात सुनी है इनसे पूछे। नहीं, आपने बात सुननी तो फिर आप क्या कर रहे हैं? भाई उन्होंने दावा किया, अगर किसी की बात ही नहीं सुननी ना, आबिद साहब का आपने जवाब 200 वाला सुनना है। सवाल मिर्जा साहब के बारे में, आप हमारे पाकिस्तान के बारे में बात करें, आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, आप हमारे भाइयों के साथ मिलाएं हमें, लेकिन उसके बावजूद आपने उसमें हिम्मत नहीं है आपकी। जो उनसे वो झूठे हैं, आमर नजीर के दावा करता वहाबियों के खुदा का, वो सच्चा है। ठीक है, ओके डन। म्यूट लगा के बैठ सकते हैं या और भी बात करनी है आपने? बस यही करना था आपने। हिम्मत है नहीं सुनने की। ये जब हक आया तो बातिल भाग गया, ये चीज है, ये चीज मैंने बड़ी देखी है। अच्छा जी, टोस्ट कर साहब आ गया, चलें जी, एक और आ गया, चलें माशाल्लाह। अब पहले हम उनकी बात का जवाब देंगे, अगर से वो बात करके भागे हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि हमारे सुनने वाले ये जगह किसी और जगह पर भी जाकर यही बात कर सकते हैं। तो ट्रुथ सीकर साहब आपके मेहमान हैं, आप उनको टाइम दीजिएगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है पहले मुझे करना है। मुसलमानों की बरौड है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनों से ज्यादा इनको टाइम देता हूं कि यार तुम लोग बात करो, सवाल जो करो, लेकिन जवाब सुनने की भी हिम्मत रखो। चुप करके है बस तोल दें पैसे, यूरो दे दें, ये कर दें, ये कौन सा जवाब है? ये कौन सी बात है भाई? हिम्मत रखो। हमने किसी को ऐसे जबरदस्ती नहीं उतारना। जी नज़ीर साहब पहले जवाब दें, फिर टू स्टिकर साहब आए, फिर बात करते हैं जी। और मैं सब दोस्तों से गुजारिश है, मेरे पास ना अभी 10-20 हो रहे हैं, 11 जुम्मा है, 11 बजे तक मेरे पास टाइम है, तो तकरीबन 40 मिनट है मेरे पास। जी जी नज़ीर साहब, जल्दी अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। कारी साहब गुजारिश ये है कि यही इन लोगों की बातिल होने की दलील है कि इनके पास सुनने के लिए सब्र और हौसला नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये झूठ बोलते हैं, इनके पास सच्चाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए इनके पास सिर्फ एक ही बात है, भाई अपनी बात को करो और वहाँ से दुड़की लगा दो, या कहो कि जो मैंने बोल दिया ये दुनिया का आखिरी सच है, इसको कबूल करो, जो मैंने कह दिया लाओ जल्दी करो, पैसे रखो, इधर पैसे रखो, मैं जीत गया हूँ, मैंने जो बात देखो पेश कर दी। असल इसकी तफसील ये है इस इजमाल की कि ये जिसकी आवाज़ आपने बीच में सुनी है, मुबारक इनका नाम है, इन्होंने कहा कि भाई
डॉक्टर इसरार ने बताया है कि ये जो अकीदा है ना हयात मसीह का, ये इंजील की तरफ से आया है मुसलमानों में। ये मुसलमानों में ना कुरान में ये अकीदा पाया जाता है, ना हदीस में ये अकीदा पाया जाता है, बल्कि ये इंजील की तरफ से आया है। तो मैंने उनको कहा भाई अगर डॉक्टर इसरार ये बात कह दें या उन्होंने ये बात कही हो कि ये अकीदा ना कुरान में है ना हदीस में है बल्कि ये इंजील की तरफ से आया है, तो मैं आपको उनके एक एक लफ्ज़ के बदले 100 यूरो दूंगा। अभी मैं उनको देने भी लगा था, वो भाग गए हैं, पता नहीं क्यों, सुनने की हिम्मत नहीं। हालांकि मैंने ये पर्स में रखे हुए 100 के नोट यूरो के, मैं आपको गिन के देने लगा हूँ। नवारवान साहब, नीचे जाके छुप के सुनना, पीछे जाके बैठ के सुनना, उसका क्या फ़ायदा होगा? हिम्मत करो, आगे आगे आओ, मैं आपको दूँ गिन के। मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ 100 के यूरो के नोट के हकदार हैं, बल्कि मुसलमानों को उसी दिन ये अकीदा छोड़ देना चाहिए। अगर मुसलमानों पर यह बात वाज़े हो जाए कि हयात मसीह का अकीदा, ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा आसमानी का अकीदा, ये इंजील की तरफ से मुसलमानों में आया है, जिस दिन ये बात मुसलमान पर आश्कार हो जाए उसको छोड़ देना चाहिए, ये अकीदा रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी किताब अल्लाह का कुरान है, इंजील तो नहीं है ना। इंजील से तो हमने अकीदा नहीं लेना, अकीदा तो कुरान से लेना है। बहरहाल वो बात यह है कि डॉक्टर इसरार अपनी वीडियो में ये बयान कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो जो सूरा आल इमरान की आयत है ना, वाइस का अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ियो का इलैया, ये जो आयत हैं इनके मुतल्लिक़ तमाम मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा आसमानी के बारे में ये आयत हैं कि जब यहूदी उनको कत्ल करने आए। यही बात तफसीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर में लिखी है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी है, इमाम ताहिर गुजराती ने लिखी है, शाह वली अल्लाह ने लिखी है। ये चारों अफराद जिनका मैंने नाम लिया, और भी मैं नाम ले सकता हूँ, ये इनकी किताब अस्ल मुसफ़ा में लिखा हुआ है कि ये मुजद्दद हैं अपनी सदी के। इन तमाम मुजद्दिदीन ने अपनी तफासीर में यही बात लिखी हुई है कि ये आयत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा आसमानी के बारे में है कि जब यहूदी उनको कत्ल करने आए तो अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से उठा लिया और यहूदी उनको छू भी नहीं पाए। लेकिन ये है अकीदा। तफसील इसकी क्या है? तफसील ना कुरान में है ना हदीस में है। कैसे उठाया, किस तरह से उठाया, मतलब खिड़की के रास्ते, क्योंकि वो तो एक कमरे में मुक़य्यद थे और बाहर उनकी जो रोमी फौज थी उसने घेरा डाल लिया था, तो वहाँ से कैसे उठाया? कुछ कहते हैं लोग कि छत फाड़ कर उठाया, कुछ कहेंगे कि वो खिड़की से निकाला। लेकिन इसकी तफसील ना कुरान में है ना हदीस में है। तफसील इंजील बरनबास में लिखी हुई है कि वो वहाँ से खिड़की से या रोशनदान से उनको वहाँ निकाला। ईसा अलैहिस्सलाम को 2 फरिश्ते आए और उससे खिड़की के ज़रिए से या रोशनदान के ज़रिए से उठाकर ले गए, और एक बंदा जो उनका हम शक्ल हो गया उसको उन्होंने पकड़कर सूली दे दी। ये सारी बात कहाँ लिखी हुई है? इंजील बरनबास में। ना ये कुरान में लिखा हुआ है, ना ये हदीस में कहीं पाई जाती है बात कि ईसा अलैहिस्सलाम को खिड़की के रास्ते से निकाला गया और उनकी जगह किसी और बंदे को फांसी दे दी गई। बिल्कुल आज भी हम कहते हैं, लेकिन ये अकीदा कि ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया, ये है अकीदा। तफसील इसकी सिर्फ इंजील बरनबास में है, तफसील कुरान हदीस में नहीं है। लेकिन ये अकीदा हमारा कुरान में भी है, हदीस में भी मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदी कत्ल करने आए तो अल्लाह ताला ने कहा वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना वो उनको कत्ल कर पाए ना वो उनको सलीब दे पाए। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि उनको सलीब दी गई, उनको छांटे मारे गए, उनको नेज़ों की अनियाँ चुबोई गई, माज़अल्लाह उनके मुंह पर थूका गया, उनको लानतें उन पर डाली गई और उनको कांटों का ताज पहनाया गया और उनका सलीब पर लटकाया गया। कुरान के इस मुनकर ने साफ लिखा हुआ है अपनी किताब में कि ईसा अलैहिस्सलाम पर यह तशद्दुद किया गया और उनको सलीब पर चढ़ाया गया और फिर उसके बाद जख्मी हालत में नीचे उतार लिया गया। मतलब वो तो बेचारे टाफियां बेचने आए हुए थे ना, जो ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देने के लिए। उनको नहीं पता कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया है। उसके बाद वो जिंदा ही नीचे उतार लिए गए और वो अपने घर चले गए। ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से पैदल चल के कश्मीर आ गए। ये इन मिर्ज़ाइयों का हौसला है कि इस अकीदे को, इस जाहिलाना और बातिल अकीदे को फॉलो करें कि एक फ़ौज है, एक बंदे को फांसी देना चाहती है, वो एक बंदे को पकड़कर फांसी भी देते हैं और उसके बाद वो बंदा जिंदा फांसी से उतार लिया जाता है, सलीब से, रस्से से उतार लिया जाता है। और क्या होता है कि वो चल के कश्मीर भी आ जाता है और रोमी फौज और वो बादशाह जिसने हुक्म दिया था उनको पता ही नहीं, कानो कान खबर ही नहीं हुई।
ये इनका ही हौसला है कि इस तरह की बातों को डाइजेस्ट करें। हमारा ये अकीदा है कि वो उनको टच भी नहीं कर पाए, ईसा अलैहिस्सलाम को वो छू भी नहीं पाए। वमा कतलूहु यकीनन बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, ये कुरान में लिखा हुआ अकीदा हमारा। वो उनको हरगिज कत्ल नहीं कर पाए, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। अगर ये हमारा अकीदा इंजील बरनबास से आया होता, हम कतन इसको कबूल ना करते, और ना आज हमारा कोई अकीदा इंजील बरनबास से। हाँ, इस वाक़े की तफसील वो डॉक्टर इसरार कह रहे हैं कि वो इंजील बरनबास में लिखी, हमारे ना कुरान में ना हदीस में। ये आज भी हम कहते हैं। ये है जी पूरी बात। इनको ये बात सुनने का हौसला नहीं था, इसलिए ये जूते कपड़े छोड़ के भागे हैं। वो नीचे अगर हैं तो उनको जूते और कपड़े नीचे फेंक दें और कहें कि ये अपने जूते कपड़े ले जाएं, पैसे का भी फिर मुलाकात होगी तो आपको देंगे बेटा। जी कर से सलाम वालेकुम आमर भाई। वालेकुम सलाम। आमर भाई तुसा एक तफसील बयान की है, और चलो ऐसी तफसील पूरी तुसा बयान कर देती है कि जो साडा अकीदा कुरान करीम के मुताबिक है, और जो मिर्जा साहब का अकीदा सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे, वो एक बातिल अकीदा है। लेकिन इस तो बाद एक और चीज़ आती है कि अहादीस मुबारक दे विच अल्लाह ताला दे नबी ने फरमाया कि नज़ूल होएगा, ठीक है। तो जो मिर्जा साहब का दावा है वो 10 महीने उन्हें एक बोझ नूं कैरी किया, और उस तो बाद वो बने, ठीक है। ਇਹਦੀ यानी कि ਉਹਨੂੰ मसीले ईसा कहते हैं। क्या ये चीज़ ही बातल पूरी तरीके नाल बातल और जाहिलाना नहीं है कि पागल ही कोई इसनों एक्सेप्ट कर सकता है? जरा ये भी तफसील बयान करेगा। जी जी, गुजारिश ये है कि एक है रफ़ा आसमानी का अकीदा, एक है नज़ूल मसीह का अकीदा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का अकीदा। उनको वहाँ से उठाया गया है और वो बरज़खी ज़िंदगी में ज़िंदा हैं। हम नहीं जानते उनकी, जिस तरह से शहीद के बारे में कुरान में आता है ना कि आप उनकी ज़िंदगी का इदराक नहीं रखते, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में शऊर नहीं रखते, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा है, रिस्क दिए जाते। ऐसे ही बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने उठा लिया, अब हम उनकी तफसील नहीं जानते कि वो किस ज़िंदगी से ज़िंदा है, कहाँ पर ज़िंदा हैं, उसकी तफसील हम नहीं जानते। लेकिन इतना जानते हैं कि अल्लाह ने उनको उठाया है और वो कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में मुहक्कम खबरें दी हैं। बुखारी में, मुस्लिम में, दीगर कुतुब हदीस में, सिहाह सित्ता में नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें ना सिर्फ आम जिक्र बल्कि कसमें खा खा कर अल्लाह के नबी ने खबर दी है कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अनकरीब तुम में ईसा इब्ने मरियम क़यामत से पहले नाजिल होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब को तोड़ देंगे और जिजिया मौकूफ़ कर देंगे। ये बातें, और मुस्लिम की एक लंबी हदीस है जिसमें दज्जाल के कत्ल का भी जिक्र है, याजूज मजूज के खरूज का भी जिक्र है, उसमें भी तफसील बयान की गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है कि ईसा इब्ने मरियम ही इस दुनिया में नाजिल होंगे दोबारा, क्योंकि उनको उठाया गया था, तो वही दोबारा नाजिल होंगे और वो आकर इस दुनिया में ये काम करेंगे। दज्जाल को कत्ल करेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ देंगे और याजूज माजूज वगैरह के साथ मुकाबला करेंगे। तो दुनिया में वो जिजिया मौकूफ़ कर देंगे, दुनिया में हुकूमत करेंगे पहले और फिर जिजिया यहाँ पर मौकूफ़ कर देंगे। जंग ही ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक मज़हब इस्लाम पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जब सलीबी अकीदा ही ख़त्म हो जाएगा, सलीब ख़त्म हो जाएगी, तो दुनिया सिर्फ इस्लाम को फॉलो करेगी। तो ये है उसकी तफसील। लेकिन मिर्ज़ाइयों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी पाक ने जो खबरें दी हैं कि वो कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे और ये काम करेंगे जो मैंने अभी जिक्र किए हैं, वो कहते हैं नहीं, इसमें से हर एक बात को इस्तिआरे के रंग में लो। इसकी तफसील ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जगह उनका कोई मसीह आना है, और जो नबी पाक ने फरमाया है वो दमिश्क के मशरक़ी किनारे के साथ वो जो सफ़ेद मीनारा है उसके करीब नाजिल होंगे। कहते हैं नहीं, इससे मुराद, दमिश्क से मुराद कादियान है, जहाँ लुद में ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कत्ल करना है, उस जगह का नाम लुद है। हदीस में उसका जिक्र मौजूद है। कहते हैं लुद से मुराद लुधियाना है, दमिश्क से मुराद कादियान है, ईसा अलैहिस्सलाम से मुराद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। फिर लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम 2 जर्द चादरें पहनकर आसमान से नाजिल होंगे। तो वो जर्द चादरों से मुराद 2 बीमारियां हैं मिर्ज़ा साहब की, एक सर की बीमारी, एक नीचे वाले धड़ की बीमारी। मतलब एक एक चीज़ का वो कहते हैं कि ये मानी है। जन्नत का मतलब जन्नत नहीं है, दोज़ख का मतलब दोज़ख नहीं है, ईसा का मतलब ईसा नहीं है, चादरों का मतलब चादरें नहीं है, दमिश्क का मतलब दमिश्क नहीं है, कादियान का मतलब, हर चीज़ का मानी बदल देना, इसका नाम है मिर्ज़ाइयत। तो बहरहाल ये अपने जो भी अकीदा रखना चाहें ये रख सकते हैं,
लेकिन हम इसको इस्लाम कभी भी करार नहीं दे सकते, क्योंकि इतना बड़ा तमस्खुर इस्लामी अकीदे के साथ अल्लाह के किया ही नहीं। अध्ययन है से आवाज चली गई आपकी आमिर भाई, आवाज चली गई। हाँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे सिग्नल शायद रेड हो रहे हैं। तो बस यही है, इसकी और भी तफसील बयान की जा सकती है, लेकिन जितना मोटी मोटी मैंने उनकी तफसील बयान कर दिया कि इनका इस तरह का अकीदा है और हमारा ये अकीदा है कि भी नाज़िल हो। मैं आपसे फिर गुजारिश आमिर भाई एक सवाल का जवाब तो दे दें। 10 मंथ जो कैरी किया बोझ को, वो थोड़ा सा उसकी तफसील को प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिर साहब एक सवाल का जवाब तो दे दें। एक मिनट डॉक्टर साहब, सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। हाँ, ये बात मिस हो गई थी बीच में। वो नजफ भाई कह रहे हैं कि वो जो मिर्जा साहब का मसीह बनने का जो तरीका उन्होंने बयान किया है कि मैं मसीह कैसे बना हूँ, क्योंकि मसीह इब्ने मरियम तो और है, मिर्जा साहब का नाम तो गुलाम अहमद रखा ना वालिदैन ने, और ये कादियान में मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा बेग के घर में पैदा हुए। तो ये मसीह कैसे बने, इसका उन्होंने खुद बयान किया है अपनी किताब में कि मुझे इस्तिआरे के रंग में हामला ठहराया गया। हामला ठहराया, वो हमल 10 महीने से कम नहीं था, और 10 महीने के बाद मुझ में ईसा की रूह नफक की गई। जिस तरह बच्चा माँ के पेट में हमल के ज़रिए से पैदा होता है, फिर उसमें 6 माह के बाद रूह नफक की जाती है ना, और वो बच्चे के अंदर रूह आ जाती है। इस तरह मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरे अंदर रूह नफक की गई है ईसा की, और इस तरह से मुझे ईसा बनाया गया है। तो भाई ये इनका ही हौसला है कि इस तरह के कीदे को मानकर एक इस तरह के ईसा को बनता हुआ देखकर उसको कबूल कर लें कि इस तरह ईसा ने बनना है। भाई हम तो उसी बात पर खड़े हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें दी है कि वो कुर्बे क़यामत में ईसा इब्ने मरियम यानी मरियम सदीका का बेटा ईसा नाजिल होंगे क़यामत से पहले, और वो ये काम करेंगे जो मैंने अभी ऊपर बयान किया। जी डॉक्टर साहब। जी आमिर साहब, अभी आपने बताया कि हज़रत ईसा जो हैं वो कसरे सलीब कर देंगे, वो सूरों को मार देंगे, और पता नहीं एक तीसरा काम भी आपने बताया वो करेंगे। तो वो आप मुझे ये बताएं कि कसरे सलीब का क्या मतलब है? जी, यकसर उस सलीब के अल्फाज जो हैं हदीस में कि वो सलीब को तोड़ देंगे, उसका मतलब यही है कि वो उन्होंने सूरों का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ वहाँ पर, उन्होंने ना तो सूरों को कत्ल करना है ना सलीबों को तोड़ना है। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, मिसाल के तौर पर सिर्फ एक बंदे, एक क्रिश्चियन के गले से, ये हमारे जोसेफ भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, इनके गले से सलीब पकड़कर वो तोड़ दें और कहें कि मुझे किसी ने सूली नहीं दी, अल्लाह का कुरान सच्चा है, मोहम्मद अरबी सच्चे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो कुछ उसमें लिखा हुआ है ना, वमा कातलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, मैं उसकी तस्दीक करने आया हूँ। उसके बाद कोई गले में रखेगा सलीब? एक बंदे की सलीब तोड़ दें, एक खंजीर को कत्ल कर दें, खबरदार ये खंजीर हराम है, कौन खाएगा मुड़ के खंजीर? तो ये है वो बात। तो ऐसे उन्होंने ये अब तवील नहीं है हामिद नज़ीर साहब, ये अब तवील नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? तवील नहीं कर रहे आप। क्यों तवील कर रहे हैं? हालांकि ये हदीस में आपके मुताबिक जो आपका कीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के ये कहा, हाँ। उसमें अल्फाज उसी तरह लेने चाहिए, उसी तरह लिए। तो मैंने कोई कहा कि नहीं, आपने तवील की है ना। क्या तवील की? एक बंदे की सलीब ली जाएगी, वो तोड़ी जाएगी, तो ये सारी तवील है। हाँ, आप सुने जरा सीकर भाई, ये आमिर भाई एक मिनट ठहरिएगा। आप ये यानी कहना चाह रहे हैं कि मज़हब इस्लाम जो कि रसूल पाक पर एक मुकम्मल दीन नाजिल हुआ है, उसमें ये ताकत ही नहीं है कि वो ईसाइयों को मुसलमान कर सके, या उनको सूरों से के खाने से रोक सके, या नबी पाक और इस्लाम पर ईमान लाने के काबिल बना सके। यानी कि मज़हब इस्लाम में ताकत ही नहीं है, तो आपने हज़रत ईसा को दुनिया में दोबारा बुलाना है, और फिर वो हज़रत ईसा ही ईसाइयों को कहेंगे तो वो मुसलमान होंगे। इस्लाम में अपनी कोई ताकत नहीं है, आपका ये मतलब है? नहीं, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। आप जैसा बंदा ये भी कह सकता है कि क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारे दोस्त टैप करें जी, सारे दोस्त टैप करें, नबी होते हुए बल्कि इमामुल अंबिया होते हुए उनमें वो ताकत नहीं थी जो उमर इब्ने खत्ताब में अल्लाह ताला ने ताकत डाली, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने
जा के मुसलमानों ने मक्का में हरम में जाके नमाजें पढ़नी शुरू की? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी होने के बावजूद, इमामुल अंबिया होने के बावजूद उनमें ये ताकत नहीं थी? इस तरह की बात। मगर दीन तो मुकम्मल हो चुका है, दीन तो मुकम्मल हो चुका है। सवाल है, मुझे जवाब देना। हजरत ईसा को दोबारा क्यों बुला रहे हैं? आप मुझे जवाब देने, वाटर साहब ऐसे ना करें प्लीज। दीन तो मुकम्मल है। वाटर साहब मुझे जवाब अर्ज करने दें। सवाल आपका लिया है, मैं जवाब मैंने देना है कि या फिर मेरी तरफ से जवाब भी आपने देना है? आपने देना है। तो फिर मुझे बोलने देना प्लीज। मैंने कहा कि जिनके दिलों में कजी हो वो ये भी कह सकते हैं कि क्या इब्ने खत्ताब में वो ताकत थी जो नबी अलैहिस्सलाम में नहीं थी, कि हरम में जाके मुसलमानों ने तब इबादत की जब उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया। नबी अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ एक अरसा दराज तक इस्लाम की तबलीग करने के बावजूद हरम में जाकर नमाजें ना पढ़ सके। आप जैसा कोई बंदा जब नुक्ता चीनी करने पर आता है तो अपने दिल की कजी को इस तरह से भी वो बयान कर सकता है। हकीकत ये है कि ये अल्लाह ताला की मसलियतें हैं, वो किस से क्या काम लेना चाहता है, किस तरीके से लेना चाहता है, क्या उसमें मसलियत है। क्योंकि कुरान में कहा अल्लाह ताला ने ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, दीन में जबर नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के नसारा को अकीदा बताया, इस्लाम का तौहीद बताई और उनके बातिल अकीदे का रद्द किया, लेकिन उन पर सख्ती नहीं की, जबरन उनको इस्लाम कबूल नहीं करवाया। करवा सकते थे, उस वक़्त करवा सकते थे नजरान के नसारा को कि वरना इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हारी मैं गर्दन उड़ा दूंगा, नहीं कहा। ऐसे ही ये जो है ना नसारा का अकीदा, अल्लाह ताला ने इसको टाइम दिया है कि भाई ये इस्लाम का अकीदा दुनिया में आ गया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्लिह। हमने अपने रसूल को मबूस ही इसलिए किया है ताकि इस दीन हक के जरिए से तमाम अदियान बातिलों को दुनिया से नबूद कर। हमने नबी अलैहिस्सलाम को भेज दिया, दीन हक देकर भेज दिया। अब इसको चाहो तो कबूल कर लो, ना चाहो तो ना कबूल करो, एक टाइम है। उसके बाद उनका अकीदे का बुतलान, जो लोग उसके बावजूद नहीं मानेंगे तब तक, जब तक मसीह इब्ने मरियम नहीं नाजिल होते, जब तक वो नहीं मानेंगे, वो उनकी चॉइस है। बाई चॉइस वो क्रिश्चियन रहना चाहते हैं या इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, क्योंकि दीन ने जबरन किसी को दीन के अंदर दाखिल होने का हुक्म नहीं दिया, दाखिल करने का हुक्म नहीं दिया। जब वो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे फिर वो इस अकीदे का बुतलान अपनी आंखों के सामने, लोगों की आंखों के सामने रख देंगे कि भाई देख लो, इतने हजार साल से ये इस्लाम अपने दलाइल के साथ आपकी आंखों के सामने खड़ा रहा, आपने इसको कबूल ना किया। हकीकत यही है, सच यही है कि मुझे ना कत्ल किया गया, ना मुझे सलीब दी गई है, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे उठा लिया था, अब मैं आ गया हूँ। ये बिल्कुल बातिल अकीदा है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। अब भी कोई है उसके बाद इनकार करने वाला? इसीलिए कुरान में कहा है व मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन बिही। जब ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो फिर वो सारे जो अहले किताब हैं उनमें से कोई भी नहीं, क्यों? फिर उसके बाद तो हुज्जत ही खत्म हो जाएगी, दलील इनके पास रहेगी नहीं ना। आज तो वो अपने नफ्स की परस्तिश की खातिर उस अकीदे को, तौहीद को मानने की बजाय, इस्लाम को कबूल करने की बजाय वो बज़िद हैं कि भाई हमने तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानना है। जिस तरह मिर्ज़ा साहब कहते थे कि मुझे अल्लाह ताला ने उससे बढ़कर लफ्ज़ कहे अंता मिन्नी बेमंज़िलत वलदी, तो उनको भी वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने प्यार से खुदा का बेटा कहा है। तो जिस तरह आप मिर्ज़ा साहब को मानते हैं कि प्यार से अंता मिन्नी बेमंज़िलत वलदी, तो बहरहाल वो इस अकीदे पर कायम है, वो आज़ाद हैं रहने में। नबी अलैहिस्सलाम अपना ये दीन लोगों को देकर चले गए। अब ये टाइम है, अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को मौका दिया है। अगर वो नहीं कबूल करते हक को तो एक दिन आएगा वो जो उनका बुतलान है वो उनकी आंखों के सामने रख दिया जाएगा। ऐसे ही कल क़यामत के दिन कई होंगे जो क़यामत के दिन लोग जाएंगे जहन्नम की राह पर, जिन्होंने सारी जिंदगी हक कबूल नहीं किया। क्या आप उनके बारे में भी दावा करेंगे भाई 1,24,000 नबी आए, कोई भी उनको मुसलमान ना कर सका, किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनको सीधी राह पे ले आता, ये क्यों जहन्नम में जा रहे हैं? 999 जाने जन्नत, 1000 में से एक जाना जन्नत में, तो वो नबी फिर क्या कर, किसी नबी में भी इतनी ताकत नहीं। इस तरह की बातें वो करते हैं जिनके दिलों में कजी हो। अंबिया इस दुनिया में इसलिए आते हैं ताकि वो लोगों को सीधी राह बता कर जाएं, लेकिन वो दरोगा नहीं होते कि वो डंडे से किसी को दीन में दाखिल करें। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम दीन छोड़ कर गए हैं, देकर गए हैं। नसारा को हक है कि वो चाहें तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने दीन पर चलते रहें, लेकिन अगर चाहें तो तहकीक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ ना वो कत्ल कर पाए। उनकी पैदाइश भी मौजज़ाना, उनका रफ़ा आसमान भी मौजज़ाना है। अब वो कुर्बे क़यामत में नाज़िल होंगे, उससे पहले पहले उनको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। जी
ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਯਕਸਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਸਰ ਯਾਨੀ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ यक्सर सलीब यक्सर सलीब ਯਕਸਰ ਸਲੀਬ जोर से कहें। मेरे पीछे लग के कहें यक्सर सलीब यक्सर सलीब। सलीब ठीक हो गया। अच्छा आमिर भाई ये जो एक सेकंड सलीबी वाटर साहब, जंगें हो माजरत- चुकी हैं तीन माजरत- सलीबी वाटर साहब- जंगें हो गई हैं, वो मुसलमान वाटर सारे साहब- बेवकूफ थे जो वाटर करोड़ों साहब- मुसलमान शहीद हुए सलीबी जंगों में, हेलो। और कई मुल्कों की सल्तनतें मुसलमानों की खत्म हुई फिर बनी दोबारा से, और करोड़ों मुसलमान शहीद हुए। तो वो बेवकूफ थे जो सलीबी जंगें लड़ते थे। उनको तो वेट करना चाहिए था, आराम से हजरत ईसा आते और आराम से सारे ईसाई जो हैं वो मुसलमान हो जाते। इसका जवाब देते हैं। नजब भाई आपका सवाल भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इमरजेंसी वार्ड में जो रेड स्टिकर वाले होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, भाई उनका ज्यादा ऑपरेशन जरूरी, इमरजेंसी होता है ज्यादा। तो इनकी बात सुन लें। ये कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो जंगें की हैं, नूरुद्दीन जंगी ने जो जंगें की हैं, वो क्यों करते रहे जंगें? भाई जंग तो नबी अलैहिस्सलाम भी करते रहे, आपके बाद आपके सहाबा जंगें करते रहे, तो जंगें तो जारी ईसाइयों से जंगें क्यों की? ईसाइयों ने तो मुसलमान हो जाना है, क्यों जंगें की उनसे? हाँ मुझे जवाब तो देने दो वाटर साहब, जवाब मैंने देना, आपने नहीं देना मेरी तरफ से, ये ज़हन में रखा करें ना। मेरी तरफ से अगर जवाब भी आपने देना है तो कहें भाई ये मेरा सवाल है और ये मेरा जवाब है। जिस तरह वो अनवार नहीं कह के गया ये मेरा सवाल है तो ये मेरा जवाब है, तो ऐ मैं लगा जाता जी। अगर मुझे जवाब देने का हक दें तो फिर मैं आपको अर्ज करता हूँ, शुरू भी तो करते हैं अपना जवाब। हाँ सलीबी जंगें हों या कोई भी पहले वाली जंगें हों, वो तमाम जंगें, उनमें से कोई भी जंग ऐसी नहीं थी जो किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ इसलिए लड़ी हो कि उनको कहा हो या इस्लाम कबूल करो या हम तुम्हारी गर्दन मार देंगे। नहीं, इस्लाम का वाज़ेह हुक्म है कि आप पर जबर नहीं है, आप इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते, हमने सिर्फ आपको दलाइल पेश किए, नहीं करना चाहते तो ला इकराह फिद्दीन, बल्कि ये कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा हमारे लिए। इस्लाम ने कहीं पर जबर नहीं किया। लेकिन जब आप खोल कर की तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन तमाम जंगों की एक बैकग्राउंड है। जंगें मुसलमानों पर या मुसल्लत की गई हैं या हालात ऐसा करवट लेते हैं कई दफ़ा कि वो जंग गले पड़ जाती है, वरना मुसलमानों की दीन की ये बुनियाद ही नहीं है, रूह ये है ही नहीं कि भाई मुसलमान लोगों को कहें कि इस्लाम कबूल कर लो या मार देंगे तुम्हें। ये किसी जाहिल का अमल तो हो सकता है, लेकिन किसी मुसलमान हुक्मरान का, खलीफा का या किसी भी जर्नैल का ये कभी भी मोटो नहीं रहा, ये कभी भी उन्होंने नारा नहीं लगाया कि या इस्लाम या मौत। नहीं, आप भूल गए हैं शायद, आप भूल गए हैं शायद कि जंग की 3 शर्तें जो पेश होती थी वो ये होती थी कि या ईमान ले आओ, या जजिया दो, या तीसरी सूरत में जंग होगी। हाँ, जजिया नहीं होता, जिजिया होता है। मेरे पीछे जिजिया हो गया, या तीसरी सूरत में जंग होगी। अब आप बताएं इस पे। हाँ, जिजिया जो है ना, असल में दुनिया में हुक्मरानी का हक सिर्फ अल्लाह की हुकूमत है, हुकूमत अल्लाह की है, क्योंकि अल्लाह कल क़यामत के दिन इन सबको इकट्ठा करके बादशाहों को कहेगा ना, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज के दिन किसकी बादशाहत है, ओ बादशाहो। ये बादशाहत असल में अल्लाह की, इस धरती पर अल्लाह की है, तो हुक्मरानी तो इस्लाम की होनी है। जो गैर मुस्लिम अक़वाम इस्लाम ना कबूल करना चाहें उनको हक है वो अपने मजहब पर जिंदगी गुजारें, लेकिन जिजिया देकर। ये तो इस्लाम ने तीसरा ऑप्शन इसीलिए रखा ना कि अगर ये 2 ही इस्लाम ऑप्शन देता कि या इस्लाम कबूल करो या तुम्हें कत्ल करेंगे, फिर आप इल्ज़ाम लगा सकते थे। इस्लाम ने तो ये तीसरा ऑप्शन दे के आपको मेरे दावे की दलील पेश कर दी कि इस्लाम ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं करता, और कहता है कि आप अगर अपने कुफर पर रहना चाहते हैं तो रहें, जिजिया अदा करें, जिस तरह टैक्स होता है वो दें, और अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें, कोई मसला नहीं। तो तीसरी शर्त भी तो बता दें, जंग के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जी भाई अगर आप जिजिया भी नहीं देते तो हुक्मरानी तो इस्लाम की होनी है, हुक्मरानी तो अल्लाह की होनी है इस दुनिया में। उसके लिए अगर आप जंग करके हमारे नीचे आना चाहते हैं तो भी ठीक है, सीधा आप जिजिया दे के, तो जिन ममालिक ने नीचे ही आपने आना है, सुने तो गैर मुस्लिमों ने नीचे ही आना है। भाई अल्लाह की हुकूमत है, हुकूमत अल्लाह की होनी है कि अमर नज़ीर की होनी या रिचर्ड की होनी। सुने, जिन अकवाम ने कहा कि हम इस्लाम भी कबूल नहीं करना चाहते और अपनी हुकूमत भी छोड़ते हैं, क्या इस्लाम ने उन पर कोई सख्ती की है? अगर की है तो आप पेश करें, हम कहेंगे गलत कहा है। जिसने ये अमल किया गलत किया है। अगर कोई कौम
वो फ़लस्तीन की हो, इसराइल की हो, मिस्र की हो, लीबिया की हो, मतलब अरब की हो, अफ्रीका की हो, यूरोप की हो, किसी कौम ने मुस्लिम हुक्मरान को कहा हो कि हम इस्लाम भी कबूल नहीं करना चाहते और अपनी हुकूमत भी छोड़ते हैं, उसके बाद उनको ज़बरदस्ती किसी ने कत्ल किया है तो गलत किया है, हम उसकी मजम्मत कर लाएं हमारे सामने कोई ऐसी बात। आप माशाल्लाह मजम्मत बहुत जल्दी कर देते हैं। तो ये बताएं कि अगर हजरत ईसा की जिंदगी शहीदों की तरह है तो शहीद तो सारे मर गए हुए हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी शहीद की तरह है, भाई मैंने सिर्फ शहीद की ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी से जो तमसील दी है वो सिर्फ बरज़ख की ज़िंदगी के हिसाब से है कि वो जो बरज़ख के मामलात हैं वो हम पर अल्लाह ताला ने आश्कार नहीं किया, हमें बताए नहीं है। बरज़खी ज़िंदगी में इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरह की ज़िंदगी है, वहाँ पर किस तरह की उनका रहन सहन है, किस तरह से टाइम गुजरता है, हमें उसकी तफसील का इल्म नहीं है, ना अल्लाह ताला ने उसकी तफसील हमें बताई है। इसलिए मैंने कहा कि वो बरज़खी ज़िंदगी है, जिस तरह शहीद की बरज़खी ज़िंदगी हम उसके बारे में जानते नहीं है। जो बरज़ख में पहुंच जाए वो मर गया हुआ होता है। आमिर साहब अपना नॉलेज सही कर लें। हाँ, आपके ख्याल में तो जब नबी अलैहिस्सलाम गए थे मेराज पर तो माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए थे मेराज पे, आपका तो यही ख्याल होगा। जिन तमाम अंबिया को नबी करीम मिले थे वो तमाम फौत हो गए थे। हाँ, लेकिन नबी करीम तो फौत नहीं हुए थे ना, नबी करीम तो वापस आए थे मक्का में। वो कश्फी हालत थी। कश्फी हालत होती ना, सुने एक मिनट बीच में ना करना। अगर कश्फी हालत होती तो मक्के के मुशरिकों को एतराज करने की जरूरत क्या थी? क्या आपने कशफ में या ख्वाब में नबी पाक ने अगर आसमानों की सैर की है तो हमारा क्या एतराज है? ख्वाब में तो बंदा जिधर की मर्जी सैर करके आ जाए। जो लोग मुर्तद हुए मेराज के वाक़े के बाद, उनका मुर्तद होना और मुशरिकीन मक्का का नबी अलैहिस्सलाम के मेराज पर एतराज करना, ये इस बात की वाज़ेह दलील है ख्वाब का मामला नहीं था बल्कि हकीकत थी। आमिर नज़ीर साहब, अगर आपने बरज़खी ज़िंदगी का कह दिया है तो ये तो वफात शुदगान लोग ही बरज़खी में जाते हैं ना, या फौत हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आपने तो बिल्कुल बात जो की है वो कि वफात की तरफ ही इशारा किया है। बिल्कुल बिल्कुल यकीनी तौर पर बरज़ख में बंदा फौत होके पहुंचता है। बिल्कुल सही कहा है। हाँ, ठीक है। मतलब कह भी जाते हैं और फिर मानते भी नहीं है, समझ नहीं। समीउल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह। चलो जी, मैं कर लूं। आपने कहा है, आपने खुद कहा अब है, मुझे जवाब देने देना। अगर मैंने कहा इन्होंने तो ट्रुथ सीकर इस्लाम की सारी ताकत को भी ज़ाया कर दिया है। इन्होंने कहा कि इस्लाम में ताकत ही नहीं कि ईसाई को मुसलमान कर सके। हजरत ईसा ही आके मुसलमान करे। समीउल्लाह आपस में बात कर रहे हैं। भाई आमिर साहब, आपने तो इस्लाम पे बहुत बड़ा बोहतान लगा मिर्जा साहब दिया। इस्लाम मुसलमान कर ही नहीं सकता ईसाइयों को। गोल करेंगे, कलीमुल्लाह के बाद समीउल्लाह की तरफ जाएगी बाल। चलो जी, तुझे शुरू हो जाओ। गोल आपने खुद ही कर दिया अपने गोल में। हाँ, समीउल्लाह आप ही गोल कर दिया। शुरू हो जाओ। समीउल्लाह के बाद कलीमुल्लाह जिंदगी में है तो और क्या चाहिए? अभी आज में भी सलीमुल्लाह के पास पहुंचने वाली है। गोल कोई रेफरी आया था, इन्होंने रेड कार्ड दे के इन्होंने खामोश कराया। जी मैं गोल रेफरी बन सकता हूं। अमर नज़ीर ने अपने गोल में आ जाओ यार, सारे माइक म्यूट करो। कलीमुल्लाह की गेम से घबरा के यार आमिर भाई शुरू करो, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ बात सुने एक मिनट जी, बात सुने। एक बंदा सवाल करे, 10 मिनट है, फिर नज़ीर साहब जवाब देंगे। टू स्टिकर साहब आप सवाल करें, फिर नज़ीर साहब जवाब देंगे। 10 मिनट है मेरे पास। नज़ीर साहब को तो सवालों के जवाब आते ही नहीं है। नज़ीर साहब क्या जवाब देंगे? नज़ीर साहब ने तो अपने गोल में खुद साहब गोल आपको कर दिया। जवाब दे रहे हैं, देखें उनके ऊपर फूल बरस रहे हैं, इतने जवाब दे रहे हैं आपको। यार मैं तो हंस रहा हूँ कि कौन इन पर फूल फेंक रहा है। इन्होंने अपने गोल में आप गोल कर दिया। कहते हैं हजरत ईसा बरज़ख में। ये ऊपर देखें, 500 नंबर हो गया नज़ीर साहब के। बरज़खी जिंदगी का सवाल किया है ना, अभी हमारे बात कर दी है। खुद ही कह दिया कि हजरत ईसा जो है वो शहीदों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। शहीद में फौत होता है। सुन ले भाई साहब, वाटर साहब मेहरबानी करें उनको जवाब देने। पहले कहते हैं शहीदों वाली जिंदगी, जवाब शुरू करें, फिर कहते हैं बरज़खी जिंदगी करना। कहाँ खांदे हो तुम? समझ रही हो अपने गोल में। नज़ीर साहब मुझे इजाजत देंगे 2 मिनट प्लीज करें। 10 मिनट है, नज़ीर साहब जवाब देंगे। 10 मिनट है मेरे पास, फिर जुम्मा के बाद हाजिर होंगे। नज़ीर साहब करें ना, ये बात तो कर लेते हैं, जवाब नहीं लेते। बोलने अच्छा साहब सवाल करें, फिर नज़ीर साहब जवाब देंगे।
सवाल आ गया। देने दे बरज़खी जिंदगी का जो उन्होंने बताया है, तो अब इसी पे हम पूछ रहे हैं ना कि तो फिर ये तो वो वफात शुदगान ही जाते हैं ना बरज़ख में, तो ये तो बात उनकी वफात की कर दी इन्होंने, ये सवाल है। ठीक है, बल्कि इन्होंने खुद इस पर एग्री कर दिया। हाँ खामोश हो जाए ना, खामोश हो जाए, मेहरबानी आपकी। गुजारिश ये है स्पीकर साहब, वाटर साहब, मोहतरम, आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। अगर उस जवाब से आप मुतमिन नहीं होते तो ये एक अलग मामला है, लेकिन जवाब तो आप हमारी तरफ से ना दें, जवाब तो हमें देने दें। उसके बाद कहें भाई हम इस जवाब से मुतमिन नहीं हैं और ये अंडा लेकर घर जाएं। वो मैंने तो अभी देखा, मैं ड्राइव कर रहा था, अल्लाह गवाह मैंने नहीं देखा कौन फूल मार रहा है कौन नहीं मार रहा। कारी साहब कह रहे हैं भी आप अपना स्कोर देखें, आपका 0 स्कोर है। ये इनका 125 साल से 0 स्कोर है। कारी साहब 125 साल से ये अंडा लेकर घूम रहे हैं, 0 स्कोर है इनका। अच्छा, और इन्होंने इसी ख्याल सिफर करें पर नीचे कोई इनका बंदा ना बैठा हो, शेर ना मार दे। मैं इनका बंदा हूँ, मुझे भी बात कर लेने से प्लीज। चल सर 10 मिनट है, 10 मिनट है, जो भी बंदा सवाल करना चाहे कर सकता है। 10 मिनट है मेरे पास, फिर मैंने जाना है जी, मुझे जुम्मे के बाद 2 स्टिकर साहब, वाटर साहब, नजीर साहब जुम्मे के बाद इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे, फिर इधर से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी बताएं, बरज़खी जिंदगी तो वफात शुदगान की जिंदगी है। हाँ जी, हमने उसका जवाब पहले बताने लगा हूं, मैं फिर दोहरा देता हूं कि बरज़ख में आपका ये ख्याल है कि उस जिंदगी में जितने जाते हैं वो फौतशुदा ही होते हैं। मैंने आपको कहा कि आम तौर पर ऐसे ही होता है, लेकिन मौजज़ा होता ही वो है जो आम फितरत से हटा हुआ होता है। नबी अलैहिस्सलाम का मेराज वो और ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा आसमानी, ये आपस में ऐसे ही इंटरलिंक्ड हैं जैसे दीगर मौजूदात हैं। इनको आम हालात पर आप नहीं परख सकते। आम तौर पर बरज़खी ज़िंदगी में वही होते हैं जो इस दुनिया से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी को उठाए, भले नबी अलैहिस्सलाम को मक्का से उठाए या ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से यरूशलेम से उठाए, अल्लाह ताला जिसको चाहे मौजूदतन उठा भी सकता है, आसमानों पर ले जा भी सकता है, दोबारा इस दुनिया में जिंदा भेज भी सकता है। लेकिन आपने मेराज का इनकार ही इसलिए किया कि अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम के मेराज, नबी अलैहिस्सलाम के मेराज आसमानी को हकीकी मानेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा आसमानी आपके गले पड़ जाएगा। फिर इसका इनकार कैसे करेंगे? इसका एक ही हल है कि नबी अलैहिस्सलाम का जो मेराज है उसका इनकार कर दो, बल्कि सिर्फ मेराज का ही ना इनकार कर दो, कुरान में जितने मौजज़ात हैं सब का इनकार कर दो और कह दो कि ईसा अलैहिस्सलाम वो तो अमलुत तिरब से मौजज़े दिखाया करते थे, जो मुर्दे जिंदा करते थे, जो अंधों को हाथ लगाते थे उनकी आंखें सही हो जाती थी, जो कोड़ी को हाथ लगाते थे जजाम वाले मरीज को वो सही हो जाता था, या घर से लोग क्या खा कर आते थे ईसा अलैहिस्सलाम बताते थे। ये सारे मौजज़ात जो कुरान में मज़कूर हैं, आप इन सब का इनकार कर दें, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर एक मौजज़े का भी इकरार करोगे, ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा आसमानी आपके गले पड़ जाएगा, आप इसको जुटला नहीं सकेंगे। बहरहाल बाकी मौजज़ात एक तरफ, जो नबी पाक का मेराज है वो एक तरफ। मेराज नबी अलैहिस्सलाम का जिस्मानी था, ये इसी वजह से मैंने इसको कहा कि इसी वजह से लोग मुर्तद हुए कि ये अक्ल से बैद है, बैद अज़ क़ियास है ये बात कि एक बंदा मक्का से 7 आसमानों की सैर करके बैतुल मक़दिस सैर कर रातों रात वापस आ जाए। ये बैद अज़ क़ियास था। कुछ लोग मुर्तद हो गए और मुशरिकीन मक्का ने इस पर बड़ा एतराज़ किया और बड़ा लोगों को वर्गलाया कि देखो नबी अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैं रातों रात यहाँ से मक्का से गया हूँ और 7 आसमानों की सैर करके। तो एतराज़ हुआ ही इसलिए, अगर वो ख्वाब का मामला होता, कशफ का मामला होता तो लोग मुर्तद क्यों होते? तो आपने इसका इनकार इसलिए करना है और करते जाना है, क्योंकि अगर आप ये मानेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा आसमानी भी मानना पड़ेगा। तो ये आपकी मजबूरी है, आप इनकार करते जाएं। हमारा काम है दलील देना और जवाब देना, आपका काम है इनकार करते जाना और ये अंडा लेके घर जाना। अंडा अंडा है, 0-0 ही है आपके दोनों के स्कोर कार्ड। देखिए सर, कहे हैं उस पर अल्लाह की लानत हो। भाई आप कहते हैं कि ईसाइयों को तो हजरत ईसा नहीं आके मुसलमान करना है, इस्लाम में तो ताकत ही नहीं है कि लानत अल्लाह लानत अल्लाह। मुंह पे खड़े होकर झूठ बोलें और झूठ बोलें जी वाटर साहब। और कोई नहीं, मैं तो आपकी बात दोहरा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ईसाइयों को हजरत ईसा ने आके मुसलमान करना है, जिसने ये भाई सलीब तोड़ दो भाई, वो क्या कहते हैं, तुम इस्लाम कबूल कर लो तो फिर वो इस्लाम बड़ी आसानी से कबूल कर लेंगे। मुसलमानों में तो ये भाई इनसे एक सवाल इनसे मैं कर सकता हूँ अभी? हाँ जी वाटर साहब, मिर्जा साहब के अंदर क्यों नहीं ताकत है कि अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ चंद कुनिंदा लोग ही इसी यानी कि बातिल अकीदे पे कायम है और बातिल दीन पे कायम है?
मिर्जा ये साहब ने कहा आप ये सत्ता आपको मानते मैं 10 करें दफा साहब जवाब दे चुका हूँ भाई, बार बार देना आपको एक ही जवाब चाहिए। इनका मिर्जा नंबर साहब में सिफर क्यों नहीं है ताकत? मिर्जा साहब मतलब उनमें उनके जो अकीदे थे या उनकी तबलीग में क्यों नहीं है ताकत, बताएं। आप मिर्जा साहब को सच्चा नबी मानते हैं? से मिलता जुलता सवाल है। जोसेफ साहब अपना क्या नाम है, वाटर साहब बात सुने। अगर आपके मिर्जा साहब को दोबारा अल्लाह ताला जिंदगी दे और इस दुनिया में भेज दे और मिर्जा साहब आपको कहें कि मिर्जाइयो मैं झूठा था, अल्लाह के नबी सच्चे थे, इस्लाम सच्चा था, मेरा मजहब छोड़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आप एक सेकंड भी लगाएंगे? सही सही बताना। आप ये मुझे बताएं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हजरत ईसा कहेंगे कि मैं झूठा था? बुरा लगा आपको, बुरा लगा। अगर आप मैं ये कहना चाह रहे हैं कि हजरत ईसा कहेंगे कि मैं झूठा था? जो बुरी बात नहीं ईसाइयों, लगी, मुसलमान हो जाओ, मैं झूठा था? मेरी बात सुने, जो बात आपको बुरी नहीं लग रही मैं वो कर देता हूँ। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तालीक बिल मुहाल है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आके कहें कि भाई ये इस्लाम की बजाय तुम वो क्रिश्चियनिटी को, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लो, हमारे पास कोई दलील रह जाएगी कि हम इस्लाम को फॉलो करें? आप कहानियों की किताब पढ़ते हैं कि हर बंदे ही आप दोबारा बुला लेते हैं? अगर ईसा अलैहिस्सलाम आके खुद अपने हाथों से ये सलीब तोड़ दें, किसी क्रिश्चियन के पास दलील रह जाएगी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने की? क्रिश्चियन लोगों को हजरत ईसा की पहचान है? हाँ ये है। उनके पास पासपोर्ट कौन सा होगा? उनके तो हजरत ईसा ने दमिश्क की मस्जिद पे नहीं आना आमिर साहब, उनके हजरत ईसा ने तो दमिश्क की मस्जिद में लैंड नहीं करना। दमिश्क से मुराद कादियान है ना? आप बता दें कहाँ पे हजरत ईसा ने आना है? दमिश्क से मुराद कादियान है, लुध से मुराद लुधियाना है, जर्द बस चादरों से फंस गए ना सारी। अब हमारी बातों पे ही आ गए, खत्म हो गई ना अपनी कहानी। दो जर्द चादरों से मुराद दो बुखारियां हैं, हैं जी। और आमिर भाई कहानी मुक गई है। अच्छा एक और सवाल वाटर साहब, शहीद की जिंदगी गुजार रहे हैं यानी फौत हो आपने गए भी हैं। बहुत सवाल किए, चलें एक मेरा सवाल का जवाब दे दें कि एक इंसान जो आपके अकीदे के मुताबिक फौत हो चुका है 2000 साल पहले, उसकी रूह एक जिंदा इंसान के अंदर मौजूदा टाइम में कैसे डाल दी गई, ये बता दे। भाई ये तुम्हारी सोच है, हम थोड़ी ईसा कहते हैं। ईसा की रूह नफक कैसे की गई? 10 महीने के हमल से मिर्जा साहब मसीह बने कैसे, ये हमें समझा दो। आपके ख्याल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह उनके अंदर आई थी? खुद में मिर्जा साहब ने कहा ईसा की रूह मुझ में नफक की गई है। छोड़े यार ये बात छोड़े नहीं, झूठों पर लानत। अभी मैं करता हूं स्कैन, मैं दूंगा अभी जवाब। मैं स्कैन पेश करता हूं। ईसा जी की जी रूह, मैं दूंगा जवाब आमिर भाई, मैं दूंगा इसका जवाब। में नफक की गई है। जी जी आमिर भाई मैं इसका जवाब दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम की रूह जो आसमानों पर है वो मिर्जा साहब में कैसे नफक हुई है, ये बताएं जरा, समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल आपको इसका जवाब मिलेगा। नाड़ी बंदा नाड़ी सवाल ही करता, नजफ ने नाड़ियां वाला सवाल करता भी, देखो रूह किस तरह बढ़ गई मिर्जा साहब अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब ने बड़ा सही सवाल किया। आमिर साहब जवाब भी लें। नाड़ी सवाल करता, करो हम समझाओ नजफ ने भी किस तरह रूह नफक की थी मिर्जा साहब। हाँ जी आमिर साहब मैं समझाता हूँ, कोई मसला ही नहीं। पहले अमल समझाना है, पहले अमल समझाना है, फिर रूह नफक। हो फिक्र ही ना करें जनाब, फिक्र ही ना करें। अच्छा जी नजर भाई, अगर आपने जुम्मे पे जाना है तो टाइम आपका ऊपर हो रहा है 2-3 मिनट। अगर आपने जाना है तो फिर जुम्मे के बाद बात हो सकती है। चले जुम्मे के बाद बात कर लेते हैं, जरा जवाब लीजिए इसका। हाँ ठीक कर लो जी। नहीं करे मेरे पास ना टाइम थोड़ा बढ़ा दिया। अगर आमिर भाई ने बड़ी, नजफ अब्बास भाई आपने वाटर साहब मैं आपको ना पहले एक चीज बता दूं, मौजे से रिलेट नहीं करना है। जवाब तो सुन लो, तो मौजे से रिलेट नहीं करना, बराए मेहरबानी। यार हम आपकी तरह मौजे वाली पोरियां थोड़ी कराते हैं, हम तो सीधी बातें करते हैं। और वो बात ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कैसे नफक हुई मिर्जा साहब में, समझाओ नजफ को। और सर इतनी आसान बात पूछिए, कोई मुश्किल सवाल पूछे, ये कोई सवाल हुआ? देर क्यों लगा रहे हैं? अगर आसान है तो सोच क्या रहे हैं, मुंह पे आप बोलने ही नहीं देते। बोले लो भाई नजफ अब्बास गौर से सुनो और कॉपी पेंसिल निकाल लो। कॉपी पेंसिल लेके लिखो जी, किंज रूह नफक हुई। जी बात दरअसल ये है कि ये वाकई आपने ना बहुत बड़ी मिर्जा साहब की ना गलती पकड़ ली हुई है कि वाकई उनमें रूह नफक नहीं हो सकती, क्योंकि बकौर आमिर नज़ीर साहब उनकी रूह जो है ना वो उनके फौत होने के बाद आलम बरज़ख में चली गई हुई है। और हम यहाँ पे मिर्जा साहब की गलती बिल्कुल मान लेते हैं कि आलम बरज़ख से कोई रूह वापस नहीं आ सकती। तो हजरत ईसा चुके फौत हो गए, मिर्जा साहब झूठे हैं। मिर्जा साहब ने ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी है। और आमिर नज़ीर के मुताबिक आमिर नज़ीर जीत चुका हुआ है। आमिर नज़ीर जीत गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, मुसलमान मिर्जा साहब जो है
आलम बरज़ख में है। मान लिया हजरत ईसा को, वाटर साहब आमिर इसको नज़ीर साहब कहते ने हैं कि वफाशुदा तुम मान तो लिया सही हजरत ईसा जहां में अलैहिस्सलाम है को। तेरा फसाना आमिर नज़ीर ने मान लिया आलम हजरत ईसा की आलम बरज़ख में। वफाशुदा साबित कर दिया उन्होंने। तो मिर्जा साहब को ऐसे जाके गोल बताओ, किए हैं। मिर्जा आमिर साहब दोनों गोल अपने वो घर के कह कर रहे दिए। ने आमिर साहब की कहानी खत्म है आज। किसे पड़ी है कि आमिर जा साहब ने बताए वैसे बिल्कुल हमारे अपनी कहानी अहमदियत बता दी है। जिंदाबाद, हो गया अहमदियत मिर्जा साहब जिंदाबाद। को कौन नारे बताएगा? तकबीर, नारे सब कमेंट में नाम लिखें अहमदिया जिंदाबाद। अच्छा अमर भाई दोबारा, एक मिनट अमर भाई दोबारा मोहम्मद रसूलुल्लाह। डॉक्टर साहब दोबारा माशाल्लाह ऐसा गोल किया है इन्होंने आमिर नज़ीर साहब ने। दोबारा बताएं कि आमिर मिर्जा साहब बरज़ख ने में झूठ पहुंचा बोला दिया है है। और वो रूह और नफक रह नहीं क्या की गया है? वो आप- रूह आसमानों पर है। लो जी रिकॉर्डिंग लगाओ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग लगाने दें एक मिनट। हाँ जी। बता दें रिकॉर्डिंग लोगों को कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, उनमें कोई रूह रिकॉर्डिंग नफक लाओ नहीं जी, की। ईसा रिकॉर्डिंग अलैहिस्सलाम लाओ। की रूह उनमें नहीं नफक हो सकती, झूठ बोला है। बता दें लोगों रिकॉर्डिंग लगा दो। ये बता लो दें जी। लोगों को कि मिर्जा साहब लो की जी। बताएं आमिर नज़ीर साहब, उनकी भी जी। रूह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह आलम बरज़ख में है। अच्छा आपने नहीं बताना, मैं मिर्जा साहब को बताने लगा। चुप कर, मैं बताऊंगा। मिर्जा हमें साहब अपनी अब क्यों मैं अब क्यों बताने घबरा लगा रहे हूं, वो हैं? मुझे आवाज देने भाई अब लगा। क्यों हजरत बात ईसा छुपा की रहे रूह का हैं? बताएंगे वो अब काम आप छुपा रहे हैं। मैं बताने लगा हूँ आपकी बात जो बात आपने की है उसको क्यों छुपा रहे हैं अब? चुप तो करो ना, मैं बताऊं। चुप तो करो ना। अब मैंने चुप सिर्फ करो, कहा कि मिर्जा साहब रिकॉर्डिंग को- ऑन की है। मैं मिर्जा साहब को मैसेज देने लगा हूँ। चुप करो जरा। ठहर जाओ, ठहर जाओ आमिर साहब, ठहर जाओ एक मिनट। गलत कर आमिर साहब एक मिनट ठहर जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨਾਲ ਹਮਕਲਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਤੇ सुनना जरा। एक मिनट ठहर जाओ आमिर साहब, मिर्जा साहब रिकॉर्डिंग लगाने दो, चुप तो करो यार, मुझे चुप जरा तो करो। रिकॉर्डिंग लगाने दे। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन करना। रिकॉर्डिंग मुझे ऑन करने दे। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर, एक मिनट ठहर जाओ। ओए ये भी एक मिनट ठहर जाओ और रिकॉर्डिंग ऑन करने दो आमिर साहब। रिकॉर्डिंग हो भी जानी चाहिए। हाँ वाटर वल्ला तेरे में बहुत पढ़ा लिखा समझदा था। आलम बरज़ख में, तूने आलम बरज़ख में अहमद कादियानी भाई बात तो करना, बीच में ना बोले, म्यूट करें वाटर साहब। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब सुन तो सही, जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे खल के खुदा गायबाना क्या। आपके पीछे गायबाना तौर पर आपके उम्मतियों ने आपको झूठा करार दे दिया मिर्जा साहब। और मिर्जा साहब बेड़ा गर्क हो गया मिर्जा अय्यदा। और वाटर साहब ने कहता मिर्जा साहब झूठ बोले है कि मिर्जा साहब दे विच ईसा अलैहिस्सलाम की रूह नफक नहीं हो सकती। एक बंदे की रूह किसी दूसरे इंसान में, किसी दूसरे बुत में नफक नहीं हो सकती। मिर्जा साहब बिल्कुल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप क्योंकि मिर्जा साहब मेरे झूठ बोल दोस्त के आमिर गए ना। नजीर ने मुझे समझाया झूठ कि बोल हजरत कर गए ईसा ना। की रूह फौत होने के मिर्जा साहब बाद झूठ बोल कर गए ना। आलम बरज़ख में है। हाँ मैं तो क्योंकि कहता मेरे रूह भी दोस्त बरज़ख में आमिर है, नजीर जिस्म ने भी- मुझे बताया है कि हजरत ईसा की रूह आलम नहीं, बरज़ख में है हाँ फौत जी। होने के रूह बाद। भी है, बिल्कुल जिस्म भी है बिल्कुल ये वहाँ बताने पर। लगे हैं, बताने लगे हैं। आमिर नज़ीर साहब हिम्मत मिर्जा करके साहब, बताने जी, लगे जी, हैं। आमिर साहब मिर्जा बता दें, साहब, बता दें। हो गए किधर है? आप। आमिर नज़ीर साहब चले अब ये भी बता दें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किधर है। अच्छा एक और सवाल आ गया जी नीचे से। लो जी, वाटर साहब लो चलो जी, जी, एक साइड पे तुसा चलो आमिर नज़ीर साहब, ट्रूथ सीकर साहब आमिर क्यों डाल नज़ीर रहे हो साहब, सवाल लबो ना। हजरत वाटर साहब, ईसा ये दसो, अलैहिस्सलाम आलम बरज़ख में है। वो उसी बरज़ख में है जिस बरज़ख से नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात होकर है, उसी बरज़ख। नबी अलैहिस्सलाम तो जो बरज़ख में गए हैं वो तो वापस नहीं आए। नबी अलैहिस्सलाम तो बरज़ख में जाके वापस ही नहीं आए। लो जी वो तो रिकॉर्ड हो फौत गया। तो भाई अंडा मिसाल हो गया अंडा ही नबी है इनके अलैहिस्सलाम पास। इन बेचारों को भी कोई अंडा तोड़ दो इनका भी यार। बाबर नबी अलैहिस्सलाम तो जब बरज़ख में गए उसके बाद वापस ही नहीं आए। 125 साल से अंडा लेकर घूम रहे हैं बेचारे। यार वैसे ही आमिर नजीर ने आज 7 गोल कर दिए अपनी तरफ। अच्छा वाटर साहब मिर्जा साहब झूठ बोल के गए हैं। जो मिर्जा साहब ने बड़े कहा घबराए हुए हैं। सर मैं थोड़ी गल से यकीन कर लिया, मिर्जा साहब के अंदर कोई रूह नहीं आई। सुने सही ना, ईसा की रूह मिर्जा साहब में नफक कैसे हुई है? मान ली सर, आपकी बात सही मान ली। हजरत ईसा की रूह तो आलम बरज़ख में है, वो मिर्जा साहब में हो ही नहीं झूठ बोल के सकती। गए। मिर्जा साहब मिर्जा साहब के स्टेटमेंट से हमने बरात ये कर झूठ दी, बोला हमने ना। आपकी बात मान ली। फिर मिर्जा साहब ने झूठ बोला हमने ना। आपकी बात मान ली। आमिर नजीर के हमने- कहने के मुताबिक तो हजरत ईसा की हमने तो फौत पहले शुदा भी- रूह अगर आलम बरज़ख में मान ली। हमें मानना है तो हमने तो आपको पहले भी कई बार कहा है कि मिर्जा साहब झूठे हैं, झूठ बोल कर गए हैं। अल्लाह के नबी भाई, सच्चे मैं तो हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ इस्लाम सच्चा सच्चा कह रहा हूं कि हजरत है, ईसा की झूठे रूह अल्लाह बंदे बरज़ख की में झूठी। है। देखें मेरी बात अच्छा, सुने, चलें, माइक अभी क्यों कल ऑन उन्होंने है? झूठ माइक बोला क्यों ऑन है? 1907 के 17 अप्रैल 1907 17 अप्रैल 1907 17 अप्रैल 1907
लगे तो कह रहे थे कि नबी पाक इतने मुत्तकी और परहेजगार थे, गैर महरम औरतों से बैत लेने के लिए भी उनको दूर बिठाते थे, ज़बानी तलकीन करते थे। अपने मरीजों को इल्जामी जवाब देने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल दिया। हम तो कल से भी कह रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं कह रहे हैं कि आपके मिर्जा साहब झूठे हैं। अगर मेरी बात सुने, अगर आपने नबी अलैहिस्सलाम की बात पर एतबार किया होता ना, तो नबी पाक ने फरमाया था कि मेरे बाद सल्लासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, मेरे बाद 30 के करीब कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सारे दावा करेंगे कि हम नबी हैं। अगर नबी पाक की बात पर एतबार किया होता, पहले इनको झूठा मान लेते। आज आपने अपनी लॉजिक से माना है कि मिर्जा साहब झूठे हैं। अल्लाह अकबर। 30 झूठे के बाद एक सच्चा, ला नबी आबादी के बाद कोई सच्चा नहीं, सारे झूठे हैं। एक सच्चा, ला नबी आबादी कहता है सारे झूठे हैं, सारे कज़्ज़ाब हैं। खुद ही कहा है, ला नबी आबादी कहा है, ये नहीं कहा। अल्लाहु अकबर। 31वां का कहाँ लिखा है उसके बाद एक सच्चा है? लिखा हुआ है नबी आबादी और 30 कज़्ज़ाबों के बाद लिखा हुआ है कि सच्चा कोई भी नहीं है, सारे कज़्ज़ाब हैं। ये कज़्ज़ाब अल्लाहु अकबर। और बाकी सब मुद्दईयान मुखाब हैं। और मिर्जा साहब ने खुद भी कहा है कि जो मुसलमा कज़्ज़ाब का भाई है, और एक मान लिया कि मिर्जा साहब सुबह सलमान कज़्ज़ाब आप आमिर की हालत खराब होगी। दे दिया। मुबारक है सारे मुसलमानों को। वाटर साहब ने साहब को कज़्ज़ाब हो गया, सारा झूठा साबित, तबीयत खराब हो गई। नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखे। आमिर साहब क्या हो गया? अमर ये बेईमानी है, स्पीकर लगाना बेईमानी लगता है कि जोर से टीका लग गया आपको आमिर नज़ीर साहब। ब्रेकिंग न्यूज। है। सीधा तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। सीधा हकीमाला टिकट हो गया, हकीमाला टिकट वाटर साहब सुबह झूठा करार देते हैं। दिल जीत लिया है। मिर्जा साहब को झूठा आपने कहकर हमारे दिलों को ठंडक बिछाई। एक दफा फिर कह दो वाटर साहब, मिर्जा साहब ने झूठ ही बोला है। ईसा की रूह मिर्जा साहब ने कैसे, इसका मतलब है, इसका मतलब है आमिर के कीदे की कब्र पे ड्रामा झूठा निकला है। हमल वाला भी झूठ है और के काजिब साबित हो गए। ये निकला ना, कब्र पे फुल डालो, मुसलमानों कब्र पे फुल डालो। और झूठे निकले ना, मिर्जा साहब कज़्ज़ाब निकले और नफक हमल नहीं हुआ। झूठ का अमल करके आपको कहा गया कि मैं 10 साल के बहुत हो गई है साथ मेरे को नफक की गई है। झूठ बोला ना मिर्जा साहब, कुछ नहीं हुआ। ये बात क्लियर कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है। कोई ईसा की रूह में दफक नहीं की गई। आपने हमारा दिल जीत लिया। वाटर साहब सारे मुसलमानों को मुबारक देने दे। और गल सुनो, और मुसलमानों वाटर साहब का अंडा तोड़ दो। क्यों? वाटर साहब ने सच बोल देता है, मिर्जा साहब को झूठा कहता है। और कोई बंदा वाटर साहब का अंडा तोड़ दो। वाटर साहब के पास जो सिफर है ना, इस सिफर को तो सबके मलिक इमरान चंगा के अंडा तोड़े। हार गया चंगी तरह। हौसले में आए, अपने मुंह नाल मान गया हजरत ईसा दी रूह बरज़ख च हैगी। मैं सवाल चलो अच्छा, ट्रुथ सीकर जो है ना, ये अभी भी सीकर ही है। वो हार गया। अल्लाहु अकबर। फुल पा दियो। अरे तकबीर। अमर भाई एक सेकंड जिंदाबाद। दोबारा एक बारी फिर प्लीज। बड़ी पुरजोर फरमाइश है लोग। दोबारा हाँ जी, दोबारा हाँ जी। तो भी मुसलमानों फिर बताएं कि ईसा की रूह में नफक नहीं।
आमिर नजीर साहब जिंदाबाद। अभी तक आपके जी कर साहब। 528 टू स्टिकर वाटर साहब 00 जिंदाबाद। नारा तकबीर अल्लाह अकबर। ये 1.25 साल से जीरो लेकर घूम रहे हैं। इनका अंडा नहीं टूटना, ब्रेकिंग इनका अंडा 1.25 साल से नहीं टूटा। इसी अंडे के साथ इन्होंने जिंदा रहना है। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर मुसलमान और चलिए वाटर साहब, चलिए वाटर साहब, इस्लाम कबूल करने पर आपको दिली मुबारकबाद दी जाती है, आपको दिली मुबारकबाद दी जाती है। वाटर साहब, आपने इस्लाम कबूल करके मिर्जा साहब को कज़ाब कहकर मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और आप मिर्जा साहब को ऐसे ही कज़ाब और दजाल करार देते रहे और इस्लाम की तरफ दूसरे मिर्जाई भी आ जाए। भाई दीगर मिर्जाई भी आ जाओ। वाटर साहब इस्लाम की तरफ आगे हैं, उन्होंने मिर्जा साहब को झूठा करार दे दिया है। बाकी सारे मिर्जाई भी वाटर साहब की बात पर अमल करते हुए ये ऐलान करें कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, कोई रूह उनमें नफक नहीं की गई ईसा की। मिर्जा साहब ने झूठ बोला है तो थे झूठे। अल्लाह के नबी ने जब उनको झूठा करार दिया तो आपने भी झूठा करार दे दिया। चलो जी आमिर साहब से अल्लाह के नबी की बात दोहराने पर आपको मुबारकबाद दी जाती है। आपने मिर्जा साहब को झूठा करार देकर अल्लाह के नबी की बात दोहराई है और मिर्जा साहब को झूठा करार दिया है। आपको लंबी लंबी मुबारकें, लंबे लंबे फूल हमारी तरफ से। वाटर साहब बहुत खुशी हुई जी वाटर साहब आपकी बात। अच्छा ये ट्रुथ सीकर जो है ये अभी भी ट्रुथ की तलाश में है। वाटर साहब इन्हों लाया पर को तेरा भी इंडा भन देने और आ मैं तुम दसा मिर्जा साहब झूठ ही बोले जी। कोई नहीं ईसा दी रूह उन्होंने नफक की थी, झूठ बोले। इधर उधर भाग रहे हैं। दस दे ट्रुथ सीकर दे इन्हों भी सीख हो जाए, इन्हों भी ट्रुथ सीख हो जाए। इन्हों दस दवो कि मिर्जा साहब झूठ बोल के गए नहीं। वाटर साहब इन्हों लै जाओ परा ते इन्हों इन्हें कान च दसो भी ईसा दी रूह मिर्जा साहब च नफक को नहीं की गई। मिर्जा साहब झूठ बोल के गए, और झूठ बोल के गए। वो शहीद होने के बाद आलम बरज़ख मिर्जा साहब झूठ बोले जे अल्लाह दी कसम ईसा दी रूह मिर्जा च नफक नहीं की गई। अल्लाह दी कसम खा के ट्रक साइड ते खड़ा कर लिया कि चलदे ट्रक ते ही बोल रहे हो। डॉक्टर साहब मैं कसम खादी तुसी इतबार कर दो। मिर्जा साहब झूठ बोले, कोई ईसा दी रूह उन्हां च नफक नहीं की गई। मैं तुहाडी गल मान लई है। मैं वाटर साहब मेरा नेड़े हुंदे मैं तुहाडा मत्था चुम लेना सी। मैं तुहाडी गल मान ली। तुसी मिर्जा साहब नु झूठा कह के मेरा दिल खुश कर, मेरा दिल खा दिता। मन गया सर, मेरा दिल खुश कर दिता जी। ऐसे तरह तुसी सारे वाटर साहब दे पीछे लग के कह दो ईसा दी रूह नफक नहीं की गई। मिर्जा साहब झूठ बोले, फुल मारो। मिर्जा साहब झूठ ईसा की रूह नफक नहीं की गई। मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, ईसा की रूह मुझ में नफक की गई है। भला ईसा की रूह मिर्जा साहब में कैसे नफक हो सकती थी? गल करने वाली कैसे हो सकती है? वो तो फौत होकर बरज़ख में झूठ बोला ना, फिर तो फिर मिर्जा साहब ने झूठ बोला ना, झूठा कहे उनको। भाई हम आपको सच्चा कह रहे हैं। शुक्रिया, मुझे सच्चा कह रहे हैं, मिर्जा साहब को झूठा करें। ठीक है वो कह रहे हैं जब मैं जज़ाकल्लाह, वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हें सच्चा कह रहा हूँ तो मैं मिर्जा साहब को झूठा ही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया वाटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका मशकूर वाटर साहब, बड़ी खुश रहे। फुल छुल कट्ठे करके दोबारा बेच लो। फूल मुसलमान भेजे नजफ नु खुश कर दो। त्रीजी बारी जान लगे, जुम्मे का टाइम होया है। नबी साहब जिंदाबाद। मुकर्रर वाटर साहब एक बारी फिर कह दो नजफ खुश हो जाएगा। नजफ मेरा निक्का भरा है, कह दो फिर मिर्जा साहब झूठ बोले। कह दो तसल्ली दे दो। आपने बड़ा सच बोला है कि हज़रत ईसा की रूह मिर्जा साहब झूठ बोले, ईसा अलैहिस्सलाम दी रूह उन्हां च नफक नहीं होई। एक बारी कह दो नजफ नु दोबारा, तीसरी बार यार तुसी सुने नहीं कह देता। एक बारी फिर कहो, दोहरा के कहो। हाँ जी नजफ साहब, हज़रत ईसा की रूह बरज़ख में है फौत होने के बाद। तो मिर्जा साहब झूठ बोले अंदर नहीं है। तो मिर्जा साहब के ढिड में क्या फूक मारी गई है? ये जी मिर्जा साहब के ढिड च फूक मारी है, ये लाश नहीं मारी सी। ऐलाने बरात हो गया, ये ऐलाने बरात हो गया। ये जरा आया सी कादियान च ये लाश ने फूक मारी सी मिर्जा साहब के ढिड ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज़ इस्लाम कबूल करने के मिर्जाई ने मिर्जा साहब को झूठा करार दे दिया। नाज़रीन सामीन एक जरूरी ऐलान सुने। एक और मिर्जाई ने मिर्जा साहब को झूठा करार देकर 4 हरफ उन पर भेज दिए और इस्लाम कबूल कर लिया। वाटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह इस्तिकामत दे वाटर साहब इसी बात पर आपको कि आप मिर्जा साहब को ऐसे झूठा करार देते रहे और इस्लाम कबूल करें। सारे मिर्जाई वाटर साहब की बात पर गौर करें। आमिर नजीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कहा आपका भी शुक्रिया भाई। आपने भी कह दिया कि मिर्जा साहब झूठ बोलते हैं, कोई रूह नहीं नफक की गई। शुक्रिया आपका। आपने भी कह दिया कि मिर्जा साहब के पेट में ये लाश ने फूंक मारी है और जिन्होंने फूंक मारी है कोई रूह नहीं नफक की गई। मान गए आप? अब आप मान गए हैं कि मिर्जा साहब के पेट में ये लाश ने फूंक मारी थी। अब आप मान गए हैं ट्रुथ सीकर साहब कि ये लाश ने फूंक मारी थी। और ईसा की रूह कैसे नफक हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। ईसा अलैहिस्सलाम की रूह तो बरज़ख में है, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है। वो मिर्जा साहब झूठ बोल के गए हैं, मुझ में ईसा की रूह नफक की गई है। माशाल्लाह मिर्जा साहब कज़ाब है, माशाल्लाह अल्लाहु अकबर। मिर्जा साहब कज़ाब साबित हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिर्जा साहब कज़ाब साबित हो गए हैं, साबित कर दिया माशाल्लाह। मिर्जा साहब कज़ाब साबित हो गए हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुश हो के जी, सबको मुबारक हो जी, मिर्जा साहब कज़ाब साबित हो गए। मिर्जा साहब सच्चे नहीं थे, झूठ बोलते थे, जो कहते थे कि मेरे अंदर रूह नफक की गई। हम तो कई दिन से कह रहे हैं झूठ बोला झूठ बोला झूठ बोला। भाई आपको इस्लाम कबूल करने पर दिली मुबारकबाद दी जाती है ट्रुथ सीकर साहब। अब आज आपने ट्रुथ सीक नाम रखना है, ट्रुथ सीक्ड, ट्रुथ सीक्ड। सच हासिल कर लिया गया, सच को पा लिया आपने। आपने वाटर साहब के साथ मिलकर सच को पा लिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक झूठा शख्स था। सच बोल दिया और सच को पकड़ लिया। सच से तमस्सुक इख्तियार करें, मिर्जा कादियानी को झूठा करार देकर आपने जनाब आज अपना नाम भी बदलना है। लोगों में ट्रुथ सीकर साहब ये जो सीकर वाला नाम है ना चेंज करके सीक्ड, SEEKED सीक्ड। आमिर साहब एक बात करनी याद आई मुझे, मिर्जा साहब झूठा साबित हुए और ट्रुथ सीक हो गया। चलो बात याद आई आमिर साहब, एक बात याद आई। अच्छा यार ट्रुथ सीकर, चलो यार चले, बस खत्म आज की कहानी, चल के सोए। कल बत्ती में जाओ, आराम करो। और भाई ट्रुथ सीकर का अंडा तोड़ दो, ट्रुथ सीकर का अंडा तोड़ दिया वाटर साहब। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ट्रुथ सीक हो गया, ट्रुथ सीक हो गया। मिर्जा कादियानी साहब झूठे साबित हो गए, अंडा तोड़ दो भाई। भाई एक दफा आप भी कह दें कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला, आपका भी अंडा वो तोड़ दिया, आपका अंडा भी। लो जी अंडे टूट के कारी साहब तुम कहते हो अंडे लेके फिर देने पे। आप कहते हैं ये 125 साल से अंडे लेकर घूम रहे। लो जी अंडे दोनों के टूट गए और इन्होंने ऐलान कर दिया कि मिर्जा साहब कज़ाब हैं, उन्होंने झूठ बोला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन सच्चा है। ईसा की रूह मिर्जा कादियानी में नफक नहीं हो सकती। मिर्जा साहब ने झूठ बोला है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, सब मुसलमानों को मुबारक हो। अल्लाह इन मिर्जाइयों को इस्तिकामत दे और ये कहते रहे कि मिर्जा साहब झूठे आदमी थे, उन्होंने झूठ बोला कि ईसा की रूह मुझ में नफक की गई। जी खैर साहब। जी जी नज़ीर साहब, तो आपने माशाल्लाह कमाल कर दिया। क्योंकि मैं बस ये आपकी तरह गाड़ी भी चला रहा और एक हाथ में मोबाइल था मेरे। मैंने कहा चले जी माहौल बन गया है। बहुत 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 आपको मुबारक हो जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वो नीचे एक मिर्जाई को डाटी आई हुई है, अगर आपके पास टाइम है वो उधर नहीं, उनको जुमा पढ़ने जाने दें, अली की बात पे आके मैं भी जरा गाड़ी लोड ले लूं। नज़ीर साहब गुफ्तगू, मलिक साहब गुजारिश है कि बस टाइम ये मैंने आप दोस्तों की वजह से कि भाई अभी जब जहाँ बर्तरी हासिल हो रही होती है ना, फिर वो टाइम देना पड़ता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। कामयाबी आ जाए ना फिर ज्यादा उसको करना वो सही नहीं होता। बाकी दोस्तों को यही रिक्वेस्ट होती है कि ब्रॉड को सपोर्ट किया करें, रिपोर्टें लगती है, मलिक साहब को भी पता है। तो ये बस बिल्कुल बहुत ज्यादा कारी साहब की ब्रॉड को रिपोर्ट होता है। ठीक है कारी साहब, इंशाल्लाह फिर जुमे के बाद बात होगी। गिफ्टिंग भी मुझे भी गाड़ी का लोड लेना है, मैं नीचे उतरने लगा हूँ। इंशाल्लाह फिर जुमे के बाद बात होगी। बहुत बहुत अल्लाह आपकी जज़ा खैर। अल्लाह